حدیث میں آتا ہے الصدقۃ برہان، صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ایمان کی، کیونکہ یہ آپ ایمان والوں کی خوبیاں ہی پڑھ رہے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ جتنا میں خرچ کروں گا اتنا میرے مال میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ مال کو خرچ کرنے سے مال کم کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن کے اندر، تم ایک دیتے ہو میں 700 گنا تک بھی بڑھا کر تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو ان کا ایمان ہے اس بات کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، ادھر کر لیا ادھر کر لیا جیسے ہاتھ میں آیا، یہ نہیں کہ اپنی ضروریات زندگی کے اوپر ہی لگاتے چلے جائیں۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو کسی نے الماری کھولی، ہزاروں سوٹ آپ کے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں میک اپ کی چیزیں آپ کی پڑی ہیں، جولیوں والا باکس کھولا تو اتنا کچھ بھی، عورت اتنا کچھ استعمال کرتی تھی۔ وہ پیسہ آپ اللہ کے پاس سیو کر لے، کسی نے دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ ایمان کی دلیل ہے کہ جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں اپنے مال کو، اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ مال کو بچا کر رکھنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اور بخیل کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے یا شیطان کا دوست ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ تو جو خرچ کرتا ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کا ایمان یقینی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ ہائے اتنے پیسے میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچیں گے؟ جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، جس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اتنے پیسے میں دے دوں گا میرے پاس باقی کیا بچے گا، تو یہ کیا ہے؟ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور اس بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بخیل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی وہ ایسی ہی سوچیں رکھتا ہے۔ تو قرآن ان کے لیے ہدایت بنتا ہے جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر ایک سال تک کچھ اماؤنٹ پڑی بھی رہی ہے تو اماؤنٹ کی بھی فکسنگ ہے کہ اتنی فکس اماؤنٹ ہوگی، یعنی تقریباً 52 تولہ چاندی اس سے آ سکتا ہے، تو وہ اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی تھی تو پھر آپ سال کے بعد اس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر اس سے کم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے، انویسٹ کرنے کے بعد تو الٹا زیادہ معاملہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا کاروبار میں چل گیا، کاروبار میں چلنے کی وجہ سے جو انکم ہے جو خرچ کر دیا وہ تو الگ بات ہے، اب جو انویسٹ کی ہوئی رقم ہے اور جو بچی ہوئی رقم ہے وہ دونوں کو ملا کے وہ تو زکوٰۃ نکالے گا، پھر جی وہ بھی کاؤنٹ ہوگی، جو خرچ کر لی وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی، جو انویسٹ کی ہوئی ہے جو بچی ہوئی ہے دونوں کو پھر جمع کرے گا، دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ تو لازمی دے گا، کیونکہ کاروباری حضرات کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ پوری دکان کے اوپر، پورا اپنا مال کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کتنا مال پڑا ہے اور کتنا پیسہ پڑا ہے، دونوں کو ملاتے ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف قرآن کا ذکر بھی کر سکتا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل، قرآن یا کتاب یا کوئی بما انزل الکتاب بھی کہہ سکتا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر صرف کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے ساتھ سننا بھی نازل ہوئی۔ جو نبی کی سنتیں ہیں، جو حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی نے خود سے نہیں بنائی، وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ سنو خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ تو یہ بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ترتیب لگوائی گئی، سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب لگوائی گئی جبرائیل کے ذریعے، ویسے ہی احادیث جبرائیل کے ذریعے ہی نازل ہوتی تھی۔ تو یہ کوئی کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہوا تھا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، یا میں صرف قرآن کو مانتی ہوں حدیث کو نہیں مانتی، جس طرح آج دنیا کے اندر کئی ایسے فرقے موجود ہیں جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن حدیث کو نہیں مانیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں بیان کی ہے کہ مجھے قرآن کے مثل اور بھی چیز دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و
सुन्नती रसूल, कि तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक तुम दो चीजों को थामे रखोगे, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, व सुन्नती रसूल, और मेरी सुन्नत यानी अहादीस। कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी डिटेल है, कुछ की डिटेल नहीं। जैसे अभी नमाज का आपने पढ़ा है कि नमाज कायम करें, अब उसमें डिटेल कहाँ से हमने देखी है? हदीस में देखी है ना। तरीका तो नबी ने हदीस में सिखाया। अब ये तरीका नबी का खुद का नहीं था। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वमा यंतिकु अनिल हवा, मैं अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी अदा नहीं करता। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ मेरी तरफ क्या की जाती है? वही की जाती है। तो ये जो इतनी सारी हदीसें हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं दीन इस्लाम के बारे में, हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसको नहीं मानते? तो जो नाजिल हुआ, जो में कुरान भी आ गया, जो में हदीस भी आ गया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और हदीस नाजिल हुआ, तो कुरान और हदीस पर भी वो दोनों चीजों पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हदीस का इनकार किया खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी हदीस के जरिए यानी हदीस का ना मानने के वाले से दूसरों को भी गुमराह करते हैं। और वो ये कहते हैं कि कुरान तो जरूरी है लेकिन हदीस जरूरी नहीं है, उस पर अमल करो या ना करो ये अलग बात है। तो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया कि कुरान और हदीस के बगैर दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज पर यानी ईमान रखते हैं, किस चीज पर? जो तुझसे पहले नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें आई हैं, मूसा, ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल हुई थी। यानी हजरत ईसा पर भी किताब नाजिल हुई, हजरत मूसा पर भी किताब नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी किताब नाजिल हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए थे। यानी मुख्तलिफ अंबिया पर मुख्तलिफ चीजें नाजिल हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि 3 नबियों का जिक्र किया जा रहा है कि मूसा, ईसा और दाऊद को किताब दी गई थी, और जबकि हजरत इब्राहीम को भी सहीफे दिए गए और दूसरे अंबिया को भी मुख्तलिफ की चीजों की सूरत में अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम यानी उन्हें भी अता किया था, उन्हें भी शरीयत अता की थी। लेकिन अब इन शरीयतों को हम मानते तो जरूर हैं कि ये वाकई अल्लाह की किताबें हैं, ये वाकई अल्लाह के अहकामात हैं, लेकिन कुरान आने के बाद बाकी सारी किताबें मनसूख हो जाती हैं। यानी मैं कहती हूँ, पहले कहती हूँ पानी पिलाओ, फिर मैं कहती हूँ नहीं रहने दो। अब आप कौन सी बात मानेंगे? दोनों हैं तो मेरी बातें, पहली वाली मानेंगे या दूसरे वाली? दूसरे वाली मानी जाएगी। यानी बाद वाली बात पहली वाली बात को रद्द कर देती है, मनसूख कर देती है। तो पहली किताबों को मनसूख आके किसने किया? कुरान पाक ने आकर पहली किताबों को मनसूख कर दिया। और क्यों मनसूख किया? क्योंकि वो आसमानी किताबें शरीयत की जो उतारी गई थी उनको यहूदो नसारा ने बिगाड़ दिया था और उसमें तहरीफ कर दी थी, उसको बदल डाला था, इसलिए उन पर अमल करना जरूरी नहीं है। अमल कुरान पर किया जाएगा, मानने के हवाले से उनको भी माना जाएगा। इसी तरह जिस तरह किताब कुरान मजीद दूसरी किताबों को मनसूख करती है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पहली तमाम शरीयतों को भी मनसूख कर देती है। यहूदी कहें कि हम यहूदी हैं, हमारे पर नबी आए थे, हम तो उसी के ऊपर पैरवीकार हैं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? जब नबी आ गए हैं तो पहले अंबिया की शरीयतों को भी मनसूख कर दिया गया। अब कोई नबी के आने के बाद नबी की बात पर अमल करने की बजाय अपनी पहली वाली शरीयतों पे अमल करेगा तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत पर ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, ठीक है ना, बुनियादी अकीदों में से आखिरत पर भी ईमान रखना। अभी हमने पढ़े थे ना कि गैब की 5-6 चीजें, उसमें क्या था? आखिरत पर भी ईमान था। तो ये बुनियादी अकीदा है, बुनियादी चीज है। अब इसके हवाले से हम देखते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कहा करते थे। यानी कुछ लोगों का अकीदा था कि आखिरत आएगी नहीं, कुछ का था कि बरज़ख की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, कुछ कहते थे हम मर कर गल सर जाएंगे तो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, कोई हशर का मैदान नहीं होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आखिरत पर यकीन रखना भी हिदायत वाले लोगों की एक निशानी रख दी है कि आखिरत पर यकीन में वो क्या है? बरज़ख की जिंदगी पर यकीन रखते हैं कि वाकईतन बरज़ख की जिंदगी है, यानी कब्र की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी एक अलग है, जब हम माँ के पेट में थे वो भी एक जिंदगी थी, आज हमें याद ही नहीं है वो कैसी थी।
ठीक है ना। तो दुनिया में आए, दूसरी जिंदगी थी हमारी, हमें उसके बारे में अब जब बरसत की जिंदगी मिलेगी तो वो एक अलग जिंदगी होगी। कोई जिंदगी दूसरी जिंदगी से मिलती जुलती नहीं है। यानी वहां पे माँ के पेट में हम खाना कैसे खाते थे, एक नाली के जरिए, ठीक है ना। अब बाहर आके हम खाना कैसे खाते हैं, अपने हाथों से खुद ही खा रहे होते हैं। तो दोनों जिंदगियों में फर्क आ गया। तो इसी तरह बरज़ख की जिंदगी में भी फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या वहां दोबारा रूह डाल दी जाएगी, तो क्या अगर रूह नहीं होगी तो उसके जिस्म को अजाब कैसे फील होगा। तो ये एक अलग से जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें अजाब को भी फील करवाएगा, उसमें इंसान को सारे अजाबों के बारे में पता भी चलेगा और उसको बाकी मामलात भी दिखाए जाएंगे। जहन्नुम का घर भी उसका घर भी दिखाया जाएगा, जन्नत का घर भी दिखाकर उसको कहा जाएगा अगर तो अच्छे अमल करता तो ये आज तेरा ठिकाना होता। तो ये एक अलग जिंदगी है जिसके ऊपर ईमान रखना जरूरी है कि वाकईतन ये सारी बातें सच्ची हैं। उसके बाद मैदान महशर और हिसाब किताब के बाद जन्नत और दोज़ख समेत इन सारी चीजों पर ईमान रखते हैं। यानी बरज़ख के मुतालिक बहुत से लोगों का ईमान नहीं है। वो कहते हैं कि कब्र में किसी को कोई भी अजाब नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कब्र में फरिश्तों का सवाल और जवाब करना, लोग उसके बारे में भी इनकार कर देते हैं कि कोई सवाल और जवाब नहीं होगा, किसी किस्म का नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, इसके ऊपर ईमान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकीदा मुकम्मल हो जाएगा कि हम आखिरत पर भी इन बातों के हवाले से यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर यानी कि आप देखें कि बहुत बड़े बड़े आलिम लोग भी बाज़ औक़ात आखिरत का इनकार कर देते हैं। यानी दुनिया में ऐसे फिरके भी मौजूद हैं, आमिल होकर, आलिम होकर, बहुत बड़े दीनदार होकर भी वो कहते हैं कि मरने के बाद कब्र में कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ यानी कि आप देख लें कि ये बहुत ज़रूरी है। गैब की चीज़ों में से है आखिरत पर भी ईमान रखना। तो ये सारी चीजें थी जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था हुदल लिल मुत्तकीन, कि मुत्तकीन हिदायत पर हैं। और मुत्तकीन की सिफात यहाँ तक खत्म हो गई। देखिए कितनी है, बिलगैब एक सिफ्त, व युकीमून अस्सलाह दूसरी सिफ्त, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून तीसरी सिफ्त, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक कुरान पाक और हदीस चौथी सिफ्त, और उससे पहली वाली किताबें शरीयत ये पांचवी सिफ्त। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी सिफ्त क्या बताई, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये 6 चीजें जिसके अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में क्या फरमा रहा है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। कौन से लोग, जिनके अंदर ये 6 खूबियां पाई जाती हैं। नमाज का एहसन अंदाज में पढ़ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, शरीयतों पर ईमान रखना, यकीन रखना और ये सारा कुछ रखना। तो ये सारे लोग कौन हैं, अपने रब की तरफ से ऐसे लोग हिदायत पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं। अब ये अल्लाह ताला ने बात क्यों की कि यही लोग हिदायत पर हैं, इसके बारे में कुरान में एक और जगह पर जिक्र आता है। यहूद और नसारा अपने बारे में कहते थे कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, कि तुम यहूदी बन जाओ या नसारा बन जाओ तो तुम हिदायत वाले बन जाओ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जिसके अंदर ये सिफात होंगी वो हिदायत वाला है। यहूदी हिदायत वाला नहीं है, ना नसारा हिदायत वाला है। हिदायत वाला बनना है तो ये सिफात आपके अंदर होने जरूरी हैं। तो अल्लाह ताला ने हिदायत किन के लिए कहा, हुदल लिल मुत्तकीन, ना यहूदी हिदायत वाले ना नसारा हिदायत वाले, बल्कि मुत्तकीन हिदायत वाले हैं। फिर उन मुत्तकीन की निशानियां भी अल्लाह ताला ने बता दी। इसी तरह यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर ना देख लें। इसी सूरह बकरा के अंदर ही आगे आएगा कि लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, कि जब तक हम अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लाते। अब अल्लाह ताला ने कहा कि हिदायत वाले तुम कैसे हो सकते हो, मैं तो हिदायत वाला उससे कह रहा हूँ जो बिलगैब, जो अल्लाह को देखे बगैर उस पर ईमान ले आए, वो हिदायत वाला है। ये हिदायत की अल्लाह ताला चंद मिसालें दे रहा है कि यहूद और नसारा अपने आप को हिदायत वाले कहते हैं, तो अल्लाह ने कहा तुम हिदायत वाले नहीं, हिदायत वाले कौन है, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर फरमाया तुम तो कहते थे अल्लाह को ज़ाहिरी देखेंगे तो ईमान लाएंगे, जबकि ये लोग मुझसे बिन देखे ईमान ले आए हैं। ये वो लोग हैं जो मुझे बिन देखे ईमान ले आए हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हम यहूदी नमाज ज़ाया करने के हवाले से बड़े मशहूर थे कि जब भी उन्हें मौका मिलता नमाज को ज़ाया कर देते, नमाज को छोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हिदायत वाले हैं वो तो नमाज को कायम करने वाले हैं।
وہ تو نماز کو قائم کرنے کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ پھر آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی بہت ہی زیادہ بخیل تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل تنگ ہو جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہدایت والے تو وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ شروع میں ہی اللہ نے ہدی للمتقین کا ذکر کیوں کیا؟ اصل میں یہ یہود و نصارہ کو جواب تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہدایت والے ہیں، تم ہدایت والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہدایت والوں میں یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اور فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت کامیاب ہیں۔ کامیابی کا واحد ذریعہ قرآن و حدیث ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے یا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کا واحد ذریعہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ کسی انسان کو کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد عمل نہ کر لے۔ کسی شخص کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، کسی کے پاس علم کے خزائن ہیں، وہ کہتا ہے شکر ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ابھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ شخص جسے جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہی کوششوں کے ہمیں ہی آنسر دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں میں تو ہدایت پر ہوں تو دیکھوں کہ کیا میرے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح خالی کھلی میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں جبکہ میرے اندر وہ صفات ہی نہ ہو، تو اللہ نے بتا دیا ہدایت والے یہ ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی کی ہے، آخرت کی کامیابی بھی اسی کے لیے ہے۔ تو کامیاب انسان ہونے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابیاں آپ کو ملی ہیں کب تک ہیں؟ عارضی، جیسے ہی سانس ختم ہوئی وہ ساری کامیابیاں وہیں کی وہیں ختم۔ اگر آپ کے پاس یہ مل گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو نہ صرف دنیا میں آپ کامیاب تھے کہ اللہ کا ہاتھ آپ کے اوپر تھا، اللہ آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ آپ کے لیے کیا بن گیا؟ فقد فاز، کامیابی کا راستہ بن گیا۔ تو در حقیقت ساری کامیابی کس میں ہے؟ دین اسلام کے اندر ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شروع کے 2 رکوعوں کے اندر 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ معاشرے کے اندر اس وقت 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ پہلا کون سے؟ ایمان والے، ہدی للمتقین۔ ہم نے پڑھ لیا کہ متقین کی یہ صفات ہیں اور یہ پہلا گروہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ اس آیت سے ہم دوسرے گروہ کا ذکر پڑھنے لگے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، برابر ہے ان پر کہ یہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ دوسرا گروہ کن کے بارے میں ہے؟ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، یعنی منکرین ہیں، کافر ہیں۔ کافر ہے جس نے بھی اسلام کو نہ مانا، دین اسلام کا انکار کر دیا، یہ دوسرے گروہ میں یعنی کافروں میں شمار ہو گیا۔ اب یہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ صاف وہ لوگ ہیں جو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے پر کہتے تھے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، مجنوں ہے، اور کبھی اسے شاعری بنا دیتے تھے۔ وہ اس قدر نافرمان لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کا بھی کھلے عام انکار کر دیا تھا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لے آتے، یہ تو کچھ شاعری ہے یا پھر یہ قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ برابر ہے ان پر، یہ مجھے نہیں کہا جا رہا، یہ نبی کو نہیں کہا جا رہا کہ برابر ہے تم پر کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یعنی میری ذمہ داری پھر بھی لگا دی، نبی کی ذمہ داری پھر بھی لگا دی کہ تم نے ڈرانا ہے، ان پر برابر ہے، یعنی ان کے لیے برابر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تم نے پھر بھی نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی، برابر ہے ان پر کہ وہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، میں کیوں تبلیغ کروں،
बल्कि साढ़े 900 साल तक तबलीग करते रहे। और उस तबलीग के बावजूद भी चंद सिर्फ कश्ती के अंदर जितने लोग मौजूद थे वही ईमान ले आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल गुजारे, 13 साल तबलीग की, चंद लोग ही ईमान ले आए और उसके बाद मदीना में चले गए। तो क्या मदीना में जाने के बाद मक्का के लोग ईमान नहीं लाए थे? लाए थे। बहुत से ऐसे मक्का के अंदर लोग मौजूद थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना वाली जिंदगी में जाने के बाद ईमान को कबूल कर लिया था। अब अल्लाह के नबी कहते कि इनके तो मुनकरीन है, ये तो नहीं मानते, अब मैं इन्हें डराना छोड़ दूं, इन्हें नसीहत करना छोड़ दूं। नसीहत करना कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। मेरे बेटे मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ता, मैं कितनी दफा कह गई नमाज नहीं पढ़ता, अब मैं इसे कहूंगी भी नहीं। नहीं, आपका काम नहीं है कि आप कहें कि मैं इसे समझाऊंगी नहीं, इसे नसीहत ही नहीं करूंगी, इसे बताऊंगी नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे बताते रहेंगे, बराबर है इस पर, वो समझे या ना समझे। हो सकता है कि किसी दौर में जाकर उसको कुछ समझ आ जाए, क्योंकि खालिद बिन वलीद के बारे में आता है मक्का की 13 साल जिंदगी में तबलीग के दौरान इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, बल्कि मुशरिकीन मक्का के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होकर मुसलमानों से लड़ाई किया करते थे। और मदनी दौर के अंदर इन्होंने जाकर इस्लाम को कबूल किया था और फिर ये इस्लाम के ऐसे शाहसवार बने कि इनके साथ मुसलमानों को कितनी जंगों में गलबा हासिल रहा और इन्हें बहुत ज़्यादा मुसलमानों को कुव्वत मिली थी। खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि ये जंगों में महारतें रखने वाला शख्स था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि तबलीग करते रहो खालिस नियत के साथ कि अल्लाह तू इसे हिदायत दे दे, अल्लाह तू ही इसको समझ दे दे। ये बात करके आप उसे हिदायत देते रहें, यानी तबलीग करते रहें, हिदायत किसी भी वक्त उसको मिल सकती है। तो नबी की सीरत और अंबिया की सीरत से हमें क्या पता चलता है कि किसी शख्स पर कोई बात असर नहीं कर रही तो उसको बताना छोड़ना नहीं है, बल्कि आपका काम क्या है? बताते रहना। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उनके लिए कहा है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा इन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तो बराबर है, तुम डरो या ना डरो, तुम्हारे डराने ना डराने से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह चाहेगा तो उन्हें ईमान को कबूल करने की तौफीक अता फरमा देगा। तो बहुत से मक्की दौर के लोग मदनी दौर में जाकर इस्लाम को कबूल कर चुके थे। तो ये तबलीग का ही असर था, बार बार पानी पड़ता रहे तो सुराख कर ही जाता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अब अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या फरमाया? अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये अपने दिलों के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों पे पर्दे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा पर्दे नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या किया? स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दी है। अब ये ऐसे सील हो गए हैं कि खैर की बात अंदर नहीं जाती और अंदर से खैर की बात निकलती ही नहीं। अल्लाह ताला माफ करे। ये दिल बड़े खतरनाक दिल है कि जिनके अंदर से भी खैर की बात ना निकले और जिनको खैर की बातें बताई जाएं वो अपने अंदर भी ना ले जाए, वो इधर से सुन के इधर से निकाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी दीन इस्लाम को सुनती चली जाऊं और इधर से सुनूं उधर से निकाल दूं, अंदर समाई ही नहीं है और अंदर से भी कभी अच्छी बातें निकली ही नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सील लगा दी। ऐसी सील है कि इसके अंदर खैर जा भी नहीं सकता और खैर बाहर आ ही नहीं सकता। यानी इतनी मजबूत सील है कि न अंदर की चीज बाहर आती है न बाहर की चीज अंदर जा सकती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें बचाए। आगे फरमाया अला कुलूबिहिम, इनके दिल पर भी मोहर है, व अला समीहिम, और इनके कानों पर भी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी कि देखने से लगता है सुन रहे हैं लेकिन सुनते नहीं। आप सल्लल्लाहु की महफिल में आके बैठते, अल्लाह के नबी को ऐसे लगता कि मैंने इतनी शानदार दावत दी है, अब तो जरूर इस्लाम को कबूल कर लेंगे, लेकिन करते ही नहीं थे। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तसल्ली रखिए कि इनका सुनना या ना सुनना आपके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, इनके कानों पे भी पर्दे डाल दिए। अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा इनको ये बात समझ नहीं आएगी। अब इनके लिए क्या है? ये खुद दुआ करे अपने रब से कि अल्लाह मेरे दिल को खोल दे, मेरे सीने को फराख कर दे, मेरे अकल और मेरी समात को बेहतरीन बना दे कि जो बात भी सुनूं उस पर अमल करने वाली बन जाऊं। वाला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी आंखों पर गहरा पर्दा है, देखते के बावजूद देखते नहीं है। आपने कभी देखा है, माओ को ज्यादा तजर्बा होगा कि सामने चीज पड़ी होती है, बच्चों को कहो जाके उठा के आओ, क्या जवाब मिलता है? नहीं पड़ी है ही नहीं, देख ली है। हम कहते हैं दोबारा देख के आओ, 2 दफा देख चुकी हूँ। हम कहते हैं फिर देख के आओ, तीसरी दफा भी देख लिया, नहीं आप खुद जाकर देखें।
तंग आ जाते हैं ऐसे जैसे और जब हम वहाँ, हाँ जी, जब हम वहाँ लेकर जाएं तो चीज खाएं, हाँ पड़ी हुई थी वहीं पे। तो ये क्या है? पर्दा। पर्दा किस चीज का है? जब शौक ना हो तो चीज नजर ही नहीं आएगी, जब शौक होगा तो चीज नजर आएगी ना। आपको शौक है तो आपको पता है कि ये चीज यहाँ रखने की नहीं थी, वहां थी। छोटे से बच्चों में भी बाज का ये सलाहियत मौजूद होती है, वो भी बाज का ये चीज यहाँ रखने की नहीं है, वहां रखने की है, वो वहां पड़ी होती है। तो ये सलाहियतें हैं जो इंसान अपनी सलाहियतों को बरोकार ला सकता है, और ये सबके पास होती हैं, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई कर। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तो अकल के बारे में भी कहा है कि मैंने सबको एक जैसी अकल दी है। कोई है 1% इस्तेमाल करते हैं, कोई 2% इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी एक तहकीक, उसमें था कि कोई कंप्यूटर माइंड इंसान भी अपनी अकल को इस्तेमाल कर ले तो वो 2-3% अकल का इस्तेमाल करता है, 97% उसकी अकल अभी महफूज है। यानी इतना इंसान के पास अकल का जखीरा है कि अगर वो चाहे तो अपनी अकल को इस्तेमाल कर ले और दुनिया के अंदर कुछ भी बन सकता है। अगर वो अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करता तो क्या है? आंखों पे भी गहरा पर्दा है, नजर ही नहीं आती कुछ भी। देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बावजूद उन्हें नजर नहीं आता क्या अहकामात है, कौन सी बातें। उनको ऐसे लगता है कि हमने पढ़ी नहीं है, बस जो कुछ पढ़ा है बात खत्म। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? दर्दनाक अजाब। दुनिया के अजाब तो छोटे छोटे हैं, चाहे जितना बड़ा भी हो ना, छोटा ही है। आखिरत का अजाब दर्दनाक, जहन्नुम का अजाब दर्दनाक है। तो दुनिया के अजाब के मुकाबले में दोज़ख का जो अजाब है वो दुनिया के अजाबों की कोई हैसियत नहीं है। आपने वो हदीस सुनी थी ना कि जहन्नुम का एक गोता दिया जाएगा, उसे दुनिया के सारे ऐशो इशरत भूल जाएंगे। यानी इतने ऐशो इशरत में रहने वाला इंसान जिसका बैंक बैलेंस, गाड़ियां, नौकर चाकर, हर चीज मौजूद है, वो जब चाहे जहां बैठ के खाना चाहे, जहां जाना चाहे आ सकता है, उसे कोई मसला नहीं। लेकिन कल कयामत के दिन जहन्नुम का एक गोता सिर्फ दिया जाएगा और फिर निकाला जाएगा और उससे क्वेश्चन किया जाएगा, बताओ क्या तुमने दुनिया में कभी ऐशो इशरत देखा? वो कहेगा अल्लाह तेरी जहन्नुम के एक होते ने मुझे दुनिया का सारा ऐशो इशरत भुला दिया है। आप अंदाजा करें कि इतनी होलनाक जहन्नुम है कि 70 साल जिंदगी जिया, 90 साल जिंदगी ऐशो इशरत में जिया, एक एक लम्हा वैसे याद करके मजे लेता था, लेकिन जहन्नुम का एक होता इतना होलनाक उसके लिए बना कि उसे सब कुछ भूल गया। और इसी हदीस के अंदर ही है कि दुनिया के अंदर तंगियों, मजबूरियों और परेशानियों में रहने वाला शख्स जब जन्नत में एक होता उसको दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या तूने दुनिया में कभी कोई तकलीफ देखी थी? वो क्या कहेगा? अल्लाह तेरे जन्नत के एक होते ने दुनिया की सारी तकलीफों को भुला दिया है। तो इंसान को अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए ताकि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, जहन्नुम के अजाब से वो अपने आप को बचा सके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।